Hello friends, welcome back to iShadow Time. So in the previous videos we had completed about the NLM topic, that is the Newton's laws of motion. We had completed the laws of motion, we had completed we had completed the topic of friction, we had completed the topic of force, we had seen all the equations that the force, what is it. And so in this video that we are going to do right now, we are going to see how the pulley works and how tension is applied. So in this video we are going to completely discuss what is pulley, how to solve pulley questions, and how to solve the combined pulley questions. Those are literally those questions which can make your head spin. So we are going to discuss those questions right now and in a much easier manner. Okay, so without wasting any time, let's start with pulley. So basically, what is a pulley? Pulley is simply a combination of a disc and two or more strings. Right? There can be many discs, there can be many strings, but the simplest pulley is this. So you can attach a mass over here and you can use this string to pull it. Actually, what is a pulley used for? See, basically, if you have to lift this object from over here to here, and if you directly apply the force in the upward direction, then you'll have to completely apply the force by your hands, right? So, and over here in this case, if you are attaching a pulley, then you can even use your weight downwards to pull this block upwards, right? If you apply your weight also, then also this block can go up. But if you directly try to lift the block, it will be very difficult for you. So pulley's main task is to change the direction of force. Only the direction of force. Over here you are applying the force in upward direction to directly lift the pulley, directly lift the mass without any help of use of any other mechanism. But over here, due to the use of pulley, you are able to apply your weight also, that is in the downward direction. If you apply the force, then also the work will be done. So this is the main concept of a pulley. Now I have even told you about tension. Now what is tension? Tension is the force applied by the string. Tension is the force applied by the string in order to pull the object. It is always away from the point of contact. Like over here it is the point of contact, so tension is in downward direction acting on the pulley. Over here it is the point of contact, so tension is in upward direction acting on the block. So over here, if this is the force applied, then tension is in the point of contact, that is the end of the string, and so tension is upwards, right? So this is the basic structure and how a pulley works. Now let's see some further explanations. कैसे पुली क्वेश्चन सॉल्व किया जाए? See, basically पुली क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ आपको. अगर कोई दो मास है, लेट्स से A है, B है, राइट? इसका कुछ वेट है, लेट्स से MB, और अगर वेट देखा जाए तो MBG हो जाएगा, और इधर अगर वेट देखा जाए तो MAG हो जाएगा, राइट? और ऊपर दोनों ही केस में, क्योंकि अब ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई, टेंशन इज ऑलवेज इक्वल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इफ द स्ट्रिंग फॉर एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का कोई स्ट्रिंग है तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, तो टेंशन इस पूरे स्ट्रिंग में इक्वल होगा, राइट? वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब स्ट्रिंग का भी मास होता है, तो जब स्ट्रिंग का मास होगा, इन दैट केस टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग होगा. बट हमें अभी के लेवल में 9th 10th के लेवल में हमें ये इमेजिन करके रखना है कि हाँ, हमें मासलेस पुली दिया जाएगा, हमें मासलेस स्ट्रिंग दिया जाएगा, हमें इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दिया जाएगा. तो ये तीन कंडीशंस हमें ऑलवेज याद रखनी होती है, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे 9th 10th में क्वेश्चंस बनते हैं. उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अभी 9th 10th में. वो 11th 12th या IIT JEE के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि स्ट्रिंग का भी मास दिया रहता है, एंड देन यू आर टोल्ड टू फाइंड द टेंशन एंड व्हाटएवर. सो अभी के केस में स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इक्वल होता है. ये भी पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंशन इज इक्वल थ्रू आउट द स्ट्रिंग. ओके, थ्रू आउट द स्ट्रिंग. अगर एक स्ट्रिंग में एक ही अमाउंट ऑफ टेंशन रहेगा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझिएगा. अगर मैं यहाँ से A ब्लॉक से C ब्लॉक कनेक्ट कर दूं
और तब आपको बोलूँ कि यहाँ पे क्या टेंशन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये टेंशन बराबर ये टेंशन है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पार्ट स्ट्रिंग था जिसमें कि ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग था जिसमें कि टेंशन इक्वल था, पर अब ये तो नॉन कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेक आ गया, यहाँ पे ब्लॉक आ गया, तो ये अब दूसरा स्ट्रिंग है, तो दूसरे स्ट्रिंग में फिर दूसरा टेंशन होगा, वो डिपेंड करेगा। दैट इज वाई टेंशन कभी भी दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में सेम नहीं होता है, क्योंकि इट इज सिंपली द बेसिकली टेंशन होता है फोर्स अप्लाइड, तो इस ब्लॉक पे टेंशन विल बी इक्वल टू द वेट, क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे वेट अप्लाई होगा सी के बॉडी का, तो mcg हो जाएगा, दैट इज द मास इनटू ग्रेविटी, और फिर उसको इक्वलाइज करने क्योंकि रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और तो कहीं से फोर्स लग नहीं रहा है, तो टेंशन विल बी इक्वल टू mcg। अब यहाँ पे टेंशन इक्वल टू mcg। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे नीचे का फोर्स है mb और ऊपर का फोर्स है टेंशन, और मोर एवर ये भी रेस्ट पे है, यानी कि टेंशन इज इक्वल्स टू mbg आ जाएगा इस केस में। अब यहाँ पे भी टेंशन क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी mbg होगा, तो मतलब यहाँ पे mbg है, यहाँ पे mcg है, दोनों का मास अगर इस दोनों का मास अलग है, इसका मास mb है, इसका मास mc है, तो हाउ कैन द टेंशंस बी द सेम mbg एंड mcg? गॉट माय पॉइंट? मतलब टेंशन अगर एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे, लेकिन अगर नॉन कंटिन्यूअस हो गया यानी कि स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, कहीं पे कुछ हिंड्रेंस आ गया, कहीं पे कोई ब्लॉक आ गया, सो इन दैट केस टेंशन सेम नहीं रहेगा दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में। एक कंटिन्यूअस में सेम रहेगा, दूसरे कंटिन्यूअस में सेम रहेगा, लेकिन दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स में सेम नहीं रहेगा। गॉट इट? वेरी गुड। अब आते हैं, अब अगर मैं बात करूं पुली के, राइट, और यहां से मैं लगा रहा हूं फोर्स कुछ लेट से, और ये फोर्स इसका मास है 22 kg लेट से, और मैं फोर्स लगा रहा हूं। नाउ वी आर टोल्ड टू फाइंड, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं लेट से 10 न्यूटन का, ठीक है, नहीं 10 न्यूटन का नहीं, लेट से 40 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं। नाउ वी आर टोल्ड टू फाइंड क्या टेंशन होगा, ठीक है ना। इस सिचुएशन को ऐसे अंडरस्टैंड करिएगा कि अगर आप जैसे कभी लेट से लिफ्ट में हैं, और अगर आप लिफ्ट में हैं और आपको नीचे भेजा जा रहा है, इज यू गोइंग डाउनवर्ड्स, राइट, या उस सिचुएशन को अभी आप नहीं समझिए, अभी आप लेट्स इसी पे कंसंट्रेट करिए। सो टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड्स एंड 2 kg का जो ब्लॉक है वो टेंशन के द्वारा पुल हो रहा है अपवर्ड्स। गॉट माय पॉइंट? over here 40 न्यूटन is pulling downwards and tension is going upwards, obvious सी बात है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि अब over here यहाँ पे तो और कोई ब्लॉक है नहीं, यानी कि यहाँ पे जो नीचे का फोर्स है वही ऊपर का फोर्स है। अगर आप किसी इंसान को इधर से खींचोगे, राइट, तो इंसान भी तो कहेगा कहाँ यार, कहाँ हाथ तोड़ोगे क्या तुम? इंसान अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, यार कहाँ हाथ तोड़ रहे हो मेरा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब टेंशन इज दैट फोर्स जो कि स्ट्रिंग में अपने आप आ जाता है। अगर आप एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाओगे तो टेंशन आना ही आना है। स्ट्रिंग भी बोलेगा कहाँ यार, तोड़ दोगे क्या मेरे को? स्ट्रिंग भी तो बोलेगा यार छोड़ दो यार, क्यों तोड़ रहे हो? तो वो भी तो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब अगर आप उसे नीचे खींच रहे हो तो स्ट्रिंग भी तो कुछ करेगा ना ऊपर के डायरेक्शन में, यार कहाँ तोड़ ही दोगे क्या? तो वो भी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा टू इक्वलाइज ईच अदर, ताकि वो टूट नहीं जाए। तो यहाँ पे भी टेंशन हो जाएगा इक्वलाइज फोर्स के, टेंशन हो जाएगा 40 न्यूटन। मोreover हमें अगर ये दिया होता है एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक में, वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंशन यहाँ पे 40 न्यूटन थी, यहाँ पे भी 40 न्यूटन होगा, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज सेम थ्रू आउट द कंटिन्यूअस स्ट्रिंग। ठीक है, 40 न्यूटन इधर आ गए। मोreover अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इसका अभी तो ये इसका मास है, हम फोर्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो हम इसके मास को ऐसे किसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे जो कि फोर्स है, यानी कि हम इसे वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 kg का वेट हो जाएगा mg, यानी कि g का वैल्यू 20, तो 20 g का वैल्यू 10, तो 20 न्यूटन हो गया। अब ऊपर में 40 न्यूटन का फोर्स है, नीचे में 20 न्यूटन का फोर्स है, नेट कुछ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऊपर ज़्यादा फोर्स है तो ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो हमेशा ये एक इक्वेशन बनाने का तरीका है कि जो ज़्यादा फोर्स होगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर ma, यानी कि नेट फोर्स। एफ नेट निकालने का ये तरीका, और एफ नेट इज इक्वल्स टू ma
ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब 2 इंटू ए डाल दो बस, तो 40 माइनस 20 इज 20 बराबर 2 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? तो ऐसे कुछ सॉल्व किए जाते हैं पुली के क्वेश्चंस। अभी हम बेसिक पुली क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम और मतलब डबल पुली देख सकते हैं, हम उसमें कंस्ट्रेंटेड मोशन ऑफ अ पुली देख सकते हैं, मतलब पुली ब्लॉक सिस्टम देख सकते हैं, बहुत सारे पुली के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अभी हम उतने हाई लेवल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन लीजिए। हाँ, सो द क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक पुली है, राइट? दिस पुली इज एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ मास, लेट्स से कोई सा ही मास आप अज्यूम कर लीजिए। मैं इसे ले लेता हूँ 6 kg, इसे ले लेता हूँ 4 kg, एंड देन वी आर गिवन कि ये नीचे एक्सलेरेशन होगा कुछ, राइट? मतलब बेसिकली वी हैव टू फाइंड एक्सलेरेशन क्या होगा इस केस में, ठीक है? अब अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं इसे, मैं इसे ऐसे सॉल्व करता हूँ। टेंशन होगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर की तरफ टेंशन होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इधर की तरफ टेंशन होगा। टेंशन दोनों ही केस में सेम होगा, इधर की तरफ 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा क्योंकि mg होता है, तो टेंशन भी 60 न्यूटन हो जाएगा, तो इधर भी 60 न्यूटन हो जाएगा। गॉट इट? अब इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, राइट? सो कैन आई राइट इट एज, मतलब अगर मैं कहूं कि इधर की तरफ टेंशन है, राइट? 4 kg मास को ये टेंशन उधर पुल कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा। अभी मैं अगर इस टेंशन की वैल्यू को नहीं लूं और मैं केवल एक्सेलरेशन की टर्म्स में बात करूं, राइट? क्योंकि ओवर हियर आप ये देख सकते हैं कि टेंशन इक्वल नहीं होगा 60 न्यूटन की, क्योंकि 60 न्यूटन पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ रहा है। मतलब ब्लॉक अगर नीचे की तरफ पुल कर रहा है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, यानी क्यों नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो टेंशन से ज्यादा होगा ये फोर्स, तभी एफ नेट नीचे की तरफ है, तभी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। इसलिए हम टेंशन इस केस में इक्वलाइज नहीं कर सकते। वो रेस्ट के केस में हम इक्वलाइज कर सकते थे, अभी नहीं। इंडिविजुअल हमें देखना होगा, ये ट्रेडिशनल तरीका मैं बताता हूँ, यानी कि FBD मेथड। FBD क्या होता है? FBD इज फ्री बॉडी डायग्राम, यानी अलग अलग किसी भी सिस्टम में अलग अलग बॉडीज को तोड़ करके फिर उस पे लगने वाले फोर्सेस पे हम बात करते हैं। तो अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक के बारे में बात करूँ, तो इधर 40 न्यूटन लग रहा है, और इस पे से ऊपर की तरफ लग रहा है NR यानी नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ लग रहा है टेंशन, राइट? मोर एवर यही इसका एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है, यानी कि टेंशन, अब NR और 40 न्यूटन तो कट जाए क्योंकि अपवर्ड कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो टेंशन is that force that is mass into acceleration, ठीक है? अब दूसरे ब्लॉक को देखूं, अगर मैं 6 kg ब्लॉक को, तो 6 kg ब्लॉक में ऐसे कि हाँ नीचे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर फिर हमारा टेंशन का फोर्स लग रहा है, फिर नीचे एक्सेलरेशन है, यानी कि फिर से बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल्स टू एफ नेट, तो 60 माइनस 6a इज इक्वल्स टू टी, और t हमें पता है, यहाँ से मैं 4a से इक्वेट कर देता हूँ इसे, तो 60 माइनस 6a इज इक्वल्स टू 4a, तो 60 इज इक्वल्स टू 10a, तो a इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब आप किसी क्वेश्चन को देख करके अचानक से कुछ भी मत सोच सकते, यू हैव टू थिंक कि क्या एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी मैं टेंशन से आपको इक्वेट कर रहा था, बट क्या एक्चुअली में टेंशन से इक्वेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी है, डाउनवर्ड फोर्स भी है, टेंशन अपवर्ड है, यानी कि ये इसको रेसिस्ट कर रहा है डाउनवर्ड में टेंशन, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से तो ऊपर लगता है हमेशा, यानी आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टेंशन, तो ऊपर की तरफ है, और 60 न्यूटन नीचे की तरफ है, यानी कि 60 न्यूटन माइनस टेंशन विल कॉज द एक्सेलरेशन। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने होंगे। अब ये एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा पुली कॉन्सेप्ट पे, इसमें आपको फॉर्मूला बता देता हूँ मैं।
मतलब वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूले इन दिस कॉन्सेप्ट। और वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमें दिया हुआ है एक सिंपल पुली, मास A मास B, और हमें ये भी दिया हुआ है MB इज ग्रेटर देन MA। ठीक है, फाइंड A एंड T, दोनों का मतलब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, अब फिर से हम क्या ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे FBD का। ये क्या मेथड है अभी मैंने बताया, MA को अलग से तोड़ के लिखो। अब टेंशन इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है, टेंशन इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है। मोर ओवर हमें दिया हुआ है MB इज ग्रेटर देन MA, यानी कि ये जो ब्लॉक है इसका मास ज़्यादा है, और अगर इसका मास ज़्यादा है तो ये नीचे पुल करेगा, यानी कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि इसका मास हल्का है तो ये नीचे ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यानी कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, और MA का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, मोर ओवर अब हम FBD बनाते हैं। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ MA। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं MA की, तो इसका नीचे की तरफ लग रहा है MAG, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, मोर ओवर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी हो रहा है, यानी और कहीं तो फोर्स है नहीं, यानी कि T माइनस MAG, क्योंकि बड़ा फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स माइनस MAG इज इक्वल्स टू MAA। क्यों? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बड़ा फोर्स यानी ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि टेंशन। अब आखिर में अगर मैं इस ब्लॉक में बात करूँ तो नीचे की तरफ तो इसका वेट है, पर अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ड्यू टू इट्स मास बीइंग लेस, तो इसे ऊपर पुल कौन कर रहा है? तो आखिरकार टेंशन ही तो कर रहा है। तो टेंशन इज ग्रेटर देन इट्स वेट, दैट इज व्हाई इट इज पुलिंग इट अपवर्ड्स। मोर ओवर ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने कॉन्सेप्चुअल आपको समझाया। अब अगर मैं मैथमेटिकल देखूँ तो अगर एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है और दोनों अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों फोर्स है, तो अगर ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यानी कि ऊपर वाला फोर्स ग्रेटर है, तभी ना ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है। तो ये भी एक सेकंड तरीका है जो कि आप हमेशा याद रख सकते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो वाला बड़ा फोर्स। गॉट इट? सो T माइनस MAG इज MA। सो मैं टेंशन को लिख सकता हूँ इस केस में MA प्लस MA इंटू G प्लस A। ठीक है, अब अगर मैं FBD ऑफ MB देखूं तो MB की अगर मैं बात करूं तो इसमें डाउनवर्ड लग रहा है MBG, और अपवर्ड लग रहा है टेंशन, और डाउनवर्ड लग रहा है एक्सेलरेशन। अब मोर ओवर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यानी कि ये वाला बड़ा फोर्स है, तो MBG माइनस T बराबर MBA, यानी कि F नेट दैट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस केस में मैं कह सकता हूं कि MB इंटू G माइनस A इज T, क्योंकि अब ये इधर आएगा तो G MB बाहर आ जाएगा तो G माइनस A हो जाएगा। अब मोरेवर अगर मैं दोनों ही इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं, अगर मैं दोनों ही इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं तो क्या होगा हमारा, दोनों ही T को इक्वेट कर दूं तो MBG माइनस MBA इज इक्वल्स टू, अभी हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं क्योंकि यही मेन फॉर्मूला है, उसके बाद फिर टेंशन तो अपने आप आ जाएगा। MBG माइनस MBA, यानी मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया और इधर भी मैं इस ब्रैकेट को खोल रहा हूँ क्योंकि इज इक्वल्स टू है, तो MAG प्लस MAA, राइट। अब मैं MAG वाले को उधर ले जा रहा हूँ MBA वाले को, क्योंकि G के साथ एक साथ होता है, BB के साथ है, तो लाइकवाइज हम ऐसे कर रहे हैं कि MB माइनस MA इंटू G, क्योंकि ये अगर इधर जाएगा तो इसका नेगेटिव साइन है, ये इधर आएगा तो इसका पॉजिटिव साइन है, इज इक्वल्स टू MB प्लस MA इंटू A। गॉट इट? अब इसी के साथ हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर को डिनोमिनेटर में भेज दूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या हमारा, ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। तो ये है फॉर्मूला जो कि आप ऐसे ही फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यानी तो आप अगर याद करके मतलब ट्रेडिशनल तरीके से FBD बना कर क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। मोreover आप किसी भी इक्वेशन के टेंशन के किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाल दो, आपको टेंशन निकल जाएगा। सो अगर आप इसमें डालना चाहोगे इसमें डाल दो, आपको टेंशन निकल जाएगा। अगर आप इसमें डालना चाहोगे इसमें डाल दो, टेंशन निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि टेंशन सेम ही होता है तो फाइनली सेम ही आंसर आएगा। टेंशन दोनों ही, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो सेम ही टेंशन आएगा। तो अगर आप इसमें ए को पुट करो या इसमें ए को पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि हम आज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको इनिशियली लगेगा कि थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया सर आपने, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली इजी है नहीं जो मैं अभी देने वाला हूँ। ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे। तीन पुलीज है, एक में मास m है, राइट, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2mg। गॉट इट। अब अगर मैं इसमें हमें फाइंड करना है एक्चुअली एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3। ओके, सो सेकेंड पुली में इधर एक मास m है और इधर एक मास 2m है, और थर्ड पुली में इधर एक मास m है, फिर इधर एक मास m है। मोर एवर इस पे एक F2 लग रहा है, ये F1 था, एंड F2 इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब ओवर हियर इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा यानी a1 a2, और इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा a3, इसका हमें रेशियो निकालना है। अब वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, मैं अभी सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। सो इन द फर्स्ट पुली, अगर मैं फर्स्ट पुली में फर्स्ट m की बात करूँ, ये हम यहाँ पे फर्स्ट पुली डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सेकंड पुली डिस्कस करेंगे, हम वहाँ पे थर्ड पुली करेंगे। सो अगर मैं फर्स्ट पुली पे बात करूँ तो फोर्स इधर जो लग रहा है एक्चुअली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कॉज हो रहा है, राइट। मोर एवर जो फोर्स लग रहा है वही उसका टेंशन होगा इस केस में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फोर्स नीचे के डायनामाइट में 2mg लग रहा है तो टेंशन भी जो कॉज होगा, मतलब अगर मैं कहूँ कि फोर्स इधर 2mg लग रहा है तो ब्लॉक पे भी तो 2mg ऊपर लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो जो फोर्स आप एक डायरेक्शन में लगाओगे वही फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इस केस में देयर इज नो सच इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पुलीज, नो सच इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म। तो जो भी आप नीचे फोर्स लगाओगे वही उस ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगेगा। तो ओवर हियर इट इज 2mg, यानी कि t भी सेम ही होगा इस केस में, तो t भी हो जाएगा 2mg। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ऊपर में 2mg लग रहा है, राइट, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a1 है, और मोर एवर m का मास mg नीचे है, यानी कि मैं ऐसे कहूँ कि 2mg माइनस mg इज इक्वल्स टू ma1। कोई दिक्कत नहीं, mg इज इक्वल्स टू ma1, यानी कि a1 इज इक्वल्स टू g आ गया हमारा। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड पुली की बात करूँ तो सेकेंड पुली में a2 है इस डायरेक्शन में, मोर एवर टेंशन होगा कुछ, मोर एवर यहाँ भी टेंशन होगा कुछ। अब हमें टेंशन नहीं पता, क्यों? क्योंकि इधर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन है, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, इसीलिए अभी हम टेंशन नहीं बता सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन कॉज हो रहा है ड्यू टू दिस मास 2mg का जो वेट है इधर, माइनस t इज इक्वल्स टू 2ma2। फिर हम t के वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करके हम फिर ट्राई करेंगे निकालना। ठीक है, सो दैट इज अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर नीचे डाउनवर्ड ma है, m ब्लॉक पे डाउनवर्ड mg है, सॉरी mg दैट इज द वेट, ऊपर टेंशन है, मोर एवर ऊपर है हमारा a2। अब इधर मैं फिर कह सकता हूँ बड़ा फोर्स माइनस mg इज इक्वल्स टू ma2, सो टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस a2। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड ब्लॉक की बात करूँ, सेकेंड ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ दैट इज 2m वाले ब्लॉक की, तो 2m है तो नीचे हो जाएगा 2mg, ऊपर हो जाएगा टेंशन, मोर एवर डाउनवर्ड होगा इसका एक्सेलरेशन a2। यानी कि अगर मैं अब इसका इक्वेशन निकालूं तो 2mg माइनस t इज इक्वल्स टू t2 मान लो, यहाँ पे t1 कह दो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो t1 है, ये हो गया t1, ठीक है, और ये हो गया हमारा t2, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, t2 है,
यानी सेकेंड पुली का सिस्टम है अभी। तो 2mg माइनस T2 इज इक्वल टू 2ma2। और फिर इस केस में मैं निकालूं तो 2mg माइनस 2ma2 इज इक्वल टू T2 को अगर मैं इससे रिप्लेस करूं तो mg प्लस ma2 कर सकता हूं मैं। अब ओवर हियर अगर मैं देखूं mg को अगर इधर ले आऊं तो mg बचेगा क्योंकि 2mg माइनस mg, और अगर 2ma2 को उधर भेजूं तो 3ma2 बन जाएगा, राइट। m से m काटा तो a2 हमारा आ गया g/3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब थर्ड ब्लॉक पे चलते हैं। थर्ड ब्लॉक क्या कहता है? हाँ, थर्ड सिस्टम पे। थर्ड सिस्टम में अगर मैं बात करूँ पहले वाले की, तो ऊपर में कुछ टेंशन होगा, नीचे में कुछ टेंशन होगा। वी डोंट नो द टेंशन। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन कॉज हो रही है, राइट। इस केस में वी न्यू द टेंशन। क्यों? क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है स्ट्रिंग पे और उस फोर्स को ही न्यूट्रलाइज करना चाहेगा स्ट्रिंग। अगर एक ही फोर्स एक्ट करेगा स्ट्रिंग पे तो स्ट्रिंग उसी को ना न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में उधर की तरफ भी एक्ट हो रहा है, उधर की तरफ एक्सलेरेशन हो रहा है, लेकिन इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो मतलब कुछ तो डिस्ट्रप्शन आ गया। अभी क्या हो रहा था? उधर ही की तरफ फोर्स था, उधर ही की तरफ एक्सलेरेशन था। बराबर T1 ऐसा कोई ब्लॉक यहाँ पे था नहीं जिसके कारण कि कुछ F नेट आए, क्योंकि अब यहाँ पे अगर ब्लॉक होता तब मैं कहता, जैसे कि अभी हम इसमें देखने वाले हैं, अगर ब्लॉक होता तब मैं कहता कि हाँ 2mg माइनस T1 इज इक्वल्स टू वट एवर m यहाँ पे है इंटू है। अब यहाँ तो m 0 है। अब अगर मैं आपके अनुसार से अगर मैं बेस आपको बताने के लिए मैं ये कहूँ इस पर्टिकुलर में कि नीचे के डायरेक्शन में अगर लेट्स से कोई पॉइंट है, पॉइंट पे इधर 2mg का फोर्स डाउनवर्ड है, फिर आप कहोगे सर ऐसा क्यों? फिर हमने यहाँ, हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे ऊपर T1 है, राइट, नीचे 2mg है, मोरेओवर नीचे एक्सलेरेशन है। अब मैं अगर इसमें इक्वेशन बनाना चाहूँ ताकि मैं मतलब अगर हम ऑब्वियस सी बात है बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स का इक्वेशन हमेशा बनाते हैं, तो मैं इसमें ठीक है बना रहा हूँ इक्वेशन। तो 2mg बड़ा फोर्स माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेरेशन। अब हमें तो ये तो पता है कि स्ट्रिंग तो मासलेस है, स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट का जीरो मास है, तो जीरो मास तो ये मास भी जीरो हो गया, तो ये पूरा कट गया, तो 2mg इज इक्वल्स टू T1। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे फोर्स के बराबर ही टेंशन होगा। आपको हमेशा FBD तरीके से ही जाना पड़ेगा टू मेक द क्वेश्चन ऑल करेक्ट, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा जब आप FBD टाइप से ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे, नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज कर जाओगे, जैसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये थर्ड ब्लॉक पे आते हैं। तो पहला वाला जो m है ये वाला, इसमें अगर मैं बात करूँ तो mg नीचे है, ठीक है, mg नीचे है, ऊपर में कुछ टेंशन है और मोरेओवर ऊपर में कुछ A3 है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि टेंशन माइनस mg इज इक्वल्स टू ma3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, t इज इक्वल्स टू mg प्लस A3। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस वाले m की बात करूँ, अब यहाँ पे आपको समझना होगा क्या हो रहा है एक्चुअली। ऊपर में टेंशन एक्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया, ऊपर में टेंशन एक्ट कर दो, T3, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ डाउनवर्ड ये एक्स्ट्रा फोर्स था, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड हमने लगाया, ठीक है भाई, एक एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं। मोरेओवर अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसका वेट एक्ट किया है अभी तक, अपने वेट को रिप्रेजेंट किया है? नहीं किया, ये तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्चुअली उसका क्या वेट था वो भी तो रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसका भी अब वेट रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स और वेट, तो टोटल समीशन नीचे की तरफ होगा 2mg का, ऊपर की तरफ T3 का और नीचे की तरफ एक्सलेरेशन है A3 का। अगर मैं इधर इक्वेशन बनाना चाहूँ तो 2mg माइनस T3 इज इक्वल्स टू ma3। क्यों? क्योंकि मास तो m है ना, F नेट तो मास इनटू एक्सलेरेशन होगा ना, सो दैट इज मास इनटू एक्सलेरेशन। नीचे की तरफ फोर्स माइनस ऊपर की तरफ फोर्स, तो इस केस में अगर मैं कहूँ तो 2mg माइनस ma3 यानी कि टेंशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं इस वाले को पुट करूँ तो ma3 आ गया, mg मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया। अब अगर मैं इधर इसको इधर बुलाऊँ, mg को इधर बुलाऊँ तो 2mg माइनस mg हो जाएगा, और अगर मैं इसे उधर भेजूँ तो 2ma3 हो जाएगा, राइट। सो g/2 इज इक्वल्स टू A3। गॉट इट? तो आपको लग रहा होगा कि इधर m है, इधर 2mg है, इधर m है, इधर 2mg, इधर m है, इधर 2mg, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। आपको ट्रेडिशनल तरीके से जाना होगा।
तभी आप एक्चुअली में आंसर्स निकाल पाओगे। अब हमें रेशियो फाइंड करना है तो सिंपली A1 बटा A2 बटा A3 फाइंड करना है, यानी कि G/3/2 अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो इंटू 6 कर दो हर एक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 तो फिर रेशियो में तो सब कट ही जाएंगे, तो इधर 6G हो जाएगा, G सब में काट ही दो तो 6G, 6/3 यानी 2/3, ये होगा हमारा आंसर। गॉट इट? सो इन दिस लेक्चर वी सॉ completely what is pulley, what is tension, how we can solve the pulley questions, what are the important key points that we have to keep in mind while solving the pulley questions, what is FBD, how to solve questions through FBD, and how to make the questions correct of pulley. That is the most important thing that we saw today. So if you watched this video and gained some knowledge from this video, and if you have any doubt in this video till now, watch the video again. It is class 9, you have to build the base. So watch the video again 3 times, 4 times till you gain that concept. Okay, so thank you and bye bye for today, and in the next lecture we'll meet with lift questions. Okay, thank you and bye bye. Happy learning, and do like, share and subscribe the videos also. बहुत मेहनत लगती है यार, इतना तो तुम कर ही सकते हो. Okay, so thank you and bye bye.